सुकहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस्यै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਂਧ ਸਾਹੋ। जिस पास बैठिया सोहियै, सबना दा वेसाहो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सारंग बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काए रे मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए। काए रे मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए। रहाओ जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहै। जिहवा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मधमाखी संचै अपार, मद लीनो मुख दीनी छार। गऊ बाशको संचै खीर, गला बांध दोहे ले अहीर। माया कारण श्रम अत करै, सो माया लै गाडै धरै। अत संचै समझै नहीं मूड़, तन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरै, साध संगत कबहू नहीं करै। कहत नाम देव ताची आन, निरपै हुए भजिए भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी होई। गुरु की साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिश का सदका करीबन साल तो कोई समा उपर आप जी के दर्शन करदिया बतीत होया। साल तो बाद फिर तुहाडे गुरु के दर्शन, गुरसिखां दे दर्शन और गुरु के शब्द की सांझ पाउण दा सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने इस सुभाग समा बख्शिश किया है। कुछ दिनों वास्ते बने हुए प्रोग्राम के मुताबिक रल मिल के गुरु के गुण गाने, गुरु का हर जस करना ते सुनना। सतगुरु जी की रहमत बख्शिश नाल ये सुभाग समा गरीब नवाज सतगुरां ने यह बख्शिश किया है। गुरमुख प्यार इन्हां दी रसना द्वारा इलाही कुर्बानी का कीर्तन सुन के जिंदगी के स्वासां नूं सफे बना रहे सां। जिहवा एक कवन गुण कहीए, बेसुमार बेअंत सुआमी, तेरो अंत न किन्ही लहीए। कोट पराध हमारे खंड हो, अंक विधि समझावा हो।
हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावहो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके बोले। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਹੈ। 36 ਲਗਭਗ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈਆਂ। 22 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। 17 ਰਾਗਾਂ ਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈ। 2 ਵਾਰਾਂ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਈਆਂ। 4 ਪੰਜਵੀਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੂਜੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਸੋਰਠ ਦੀ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਜੈਰਸ ਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਹੈ, 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀ ਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 12ਵੀਂ ਵਾਰ। 13ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਹੈ। 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਈਆਂ। 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 22ਵੀਂ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਨੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਨ ਚੜਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ
तीसरी आसा जी की वार है, चौथी गूजरी की है, पंजवीं इसे तरह वडहंस की है, छेवीं रामकली की है, सतवीं सारंग की है, अठवीं जी कानड़े की है, नावीं मलार की है। ये 9 वार जिन्हों के उपर चौजी प्रीतम ने तुना कृपा करके चढ़ाइया सन। श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना करवाई चौजी प्रीतम ने। नथे अब्दुल्ले वर्गे ढाडी वीर असी वारां गाउंदे, बहादुर सूरमियां दी वार पौड़ियां गाउंदे, जिहड़े ढाडी जिहड़ी चंगी लगदी हजूर सच्चे पातशाह हुक्म करदे भी इस वार दीयां पौड़ियां इसे लै ते गाइयां जाण है। ये भाव है धुन दा है। सारंग दी वार राय महिमे हसने की धुन हजूर ने फरमाई हुई है। अकबर बादशाह के राज विच कांगड़े के इलाके च 2 पड़ोसी राय हसना ते महिमा, ये 2 भट्टी खालसा जी, ये लोग राजे सन। जेड़ा राय महिमा सी वो बड़ा धर्मात्मा ख्याल दा सी, चंगे ख्यालों वाला से। राय हसना जिहड़ा सी कूटनीति वाला सी, जदों अकबर बादशाह के पास टके भरन जाया करदे, राय महिमे ने राय हसने नूं कह देना भी जदों अपने टके भर के जाना भरन वास्ते जाने हो, मेरे भी टके नाल भर आया कर, लै जाया कर। अपना टैक्स टके जिहड़े सी वो राय हसने नूं दे दिया करे भी तू इकट्ठे जमा करवाई ते मेरे वालों भी लिखवा आवे। अकबर बादशाह के पास अपनी तो हाजरी टके जमा करवा के लवाया करे ते इस महिमे राय की जिहड़ी गैर हाजरी उत्थे लवाया करे। कोई समय बाद अकबर बादशाह ने जदों ख्याल किया भी बागी हो गया है, राय महिमा उसने फौज चढ़ा के काबू कर लिया, जेल की काल कोठी बंद कर दिता है। कोई समा बंद रहने तो बाद अकबर बादशाह जिस दिन प्रसन्न होया, उसने हुक्म किया भी एक किला जमीन विच गड्ढिया जावे और कोई एहलकार, कोई ऐसा बहादुर सूरमा जिहड़ा घोड़ा भजा के किला फुंड दे इक्के वार मैं मूँह मंगिया इनाम देवांगा, उन्होंने बहादुर योधा समझा जाएगा। इसे तरह करने वास्ते सारियां नूं बुलाया, पर इक्के बार किसी तो किला पुटिया ना गया है। कोई इस तरह राय महिमे का नजदीकी बंदा अकबर बादशाह ने बेनती की, महाराज राय महिमे नूं जे हुक्म करो तो वह किला पुट सकता है। बादशाह कहने कित्थे हो, कहते महाराज तुहाडा कैदी बनाया होया है, चाटी एहलकार भेज के मंगवाया, कहने किला पुट सकते हो, कहते महाराज जिवें तुहाडी आग्या है। घोड़े ते सवार होके जो घोड़ा भजाया किले के मुठ विच नेजा मार के वो किला पुट दिता सी। अकबर बादशाह बड़ा चित प्रसन्न होया, दस की चाहुंदा है। बेनती की, बादशाह मैं एक अपना दोखी रोना दसना चाहुंदा है। मैनू बेगुनाह नूं तुसीं ये सजा दिती है, मेरा गुनाह कोई नहीं से। मैं टके भेजदा रहा राय हसने द्वारा, पर वो अपने टके जमा करवा के लिखवा दिंदा, मेरी गैर हाजिरी लिखवाउंदा रहा है। बादशाह ने कहा मेरी फौज भी लाई है, तेनों काबू कर डन दे। जब उन्हें सारे राज ते कब्जा किया, कोई समय बाद धर्म का राज करदियां होया उहदा राज उहनूं वापस दे दिता सी भी तू मेरे नाल माड़ी कीती है, मैं तेरे नाल धक्का नहीं करना है। उस राय महिमे राय हसने के संबंध विच जदों ढाडियां ने श्री अकाल तख्त साहब ते वारां पौड़ियां गाइयां, मेरी पीर दे मालिक सतगुरु प्रसन्न होकर आग्या कीती सी, सारंग दी वार दीयां जिन्नियां पौड़ियां ने वो इस तरीके नाल इस लय विच गाइयां जाण है। राय महिमे दी इस राय हसने ते राय महिमे दे संबंध विच सतगुरु जी ने धुन गाउण दी आग्या कीती सी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने उस गिणती के मुताबिक 9 धुना विच 7वीं धुन वाली ये वार है। समाप्ति ते हजूर सच्चे पातशाह जी ने शुद्ध शब्द वरते है। ये गुरु की बाणी शुद्ध है, किसी को कलम चुकन का कोई हक हकूक नहीं। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किश नहीं। फिर चौजी प्रीतम गरीब नवाज ने भगतां दी बाणी आरंभ कीते। 2 शब्द पहले आप जी ने सुने ने, भगत कबीर साहब जी दे कहा नर गर्भ सथोरी बात, मन दा समाज टका 4 गांठी एडो टेडो जात।
राजाश्रम मित्र ही जानी तेरी, तेरे संतन की हों चेरे। हस तो जाए सो रोबत आवे, रोबत जाए सो हसै। बस तो होए सो ऊजर, ऊजर होए सो बसै। जलते थल कर थलते कूआ, कूकते मेर करावे। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधु को प्रीतम, तिस मूरत बलिहारी। इਉਂ हजूर सच्चे पातशाह जी ने भगतां दी बाणी अगे भगत नामदेव साहब जी दे 2 शब्द पहले कबीर साहब जी दे, 3 शब्द भगत नामदेव साहब जी दे ने, 1 शब्द हजूर ने परमानंद भगत जी का लिखिया होया है। सो इस तरीके नाल फिर हजूर सच्चे पातशाह जी ने सूरदास जी नूं सिरों पौ दिता, छाड़ मन हर विमुखन को सांग। इन्नी तो की खालसा जी केवल गुरु के दरबार गुरु ग्रंथ साहब च पढ़न नूं मिलदी है। मांगट वाला जिहड़ा स्वरूप सी ओहदे विच अगे भी लिखिया होया है भाई बन्नो वाली बीड़ विच। पर इस तरीके नाल सतगुरु गरीब नवाज ने इक्को ही तुक सूरदास की गुरु ग्रंथ साहब च पढ़न नूं मिलदी है। फिर चौजी प्रीतम ने आप सूरदास, सारंग महला पंजवा सूरदास है। सो इउं करके गरीब नवाज ने कोई शब्द संपूर्णता करके आप चौजी प्रीतम ने फरमाया से। फिर समाप्ति वाला शब्द भगत कबीर साहब जी का है। सो रागमई शब्द भगत जी ने फरमा के इस राग की समाप्ति की हुई है। सारे भगतां की बाणी के शब्द गिन लईए, 1 तुक वाला शब्द सूरदास वाला पा लीए तो 9 शब्दों का ये भगत बाणी में हजूर ने अंकित किए हुए ने। सारे सारंग राग के शब्दों की गिनती लगभग 211 के करीब हजूर सच्चे पातशाह जी ने इस राग में इस तरह वार समेत श्लोक जिहड़े ने चौजी प्रीतम दे फरमाए हुए ने। ऐसी रहमत बख्शिश वाला एक पवित्र अमृत रूप सारंग राग का पवित्र उपदेश सतगुरु गरीब नवाज ने सानू किरपा करके बख्शिया है। वो रब दे प्यारे भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित है। जेड़े परमेश्वर नाल मिले हुए सी, कोई फर्क ही कोई नहीं। भगत कबीर साहब वर्गे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सकै पछाने। हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जान मान सदे है। ऐसे भगत कबीर साहब वर्गे, भगत नामदेव साहब वर्गे, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोग शीपा कहे बुलाए। खत्री ब्राह्मण पेठ दे छोड़े, हर नाम दो लिया मुख लाए। सो गुरु के प्यारे भगतां नूं जदों भी कोई विपता ते औकड़ दा समा पैंदा रहा, सेवक कहो निकटी होए दिखावे। जय जय काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावै। मरी हुई गऊ भगत नामदेव जी की जिउंदी करनी खालसा जी। सरेम बादशाह ने जो यतन किया कि 7.5 घड़ियां की मोहलत मैं समा देना है, जां तो मरी हुई गऊ जिंदा कर दे ते सिर कलम कर दिता जाएगा। क्या बादशाह मेरा किया कशू ना होए, कर है राम होए है सोए। मेरा कीता की हो सकता है, जो वाहिगुरु परमात्मा करदा उही कुछ हुंदा है। पर क्या मैं 7.5 घड़ियां का समा देना है। जब सुनिया भगत जी ने 7 घड़ियां समाधि ला के बैठ गए परमेश्वर की याद विच, अद्धी घड़ी बाकी रह गई। 12 मिनट अद्धी घड़ी दे हुंदे ने। जलाल सिर ते तलवार लेके आन कूकिया से, कोई नामदेव जी नूं याद करना कर लै। अद्धी घड़ी का समा गिनती दे मिनट रह गए, तेरा सिर कलम कर दिता जाएगा। जां बादशाह की मरी हुई गऊ जिंदा कर दे। उस ने क्या सी परमेश्वर अपने प्यारिਆਂ की सहायता करने वास्ते अजे बौड़िया नहीं, अजे आया नहीं। इन्ना ही कहण की देर सी, 7 घड़ी जब बीती सोने। अजा हो ना आयो तिर भवन धनी, पाखंतन बाज बजाएला। गरड़ चढ़े गोबिंद आएला, अपने भगत पर की प्रतिपाल। गरड़ चढ़े आए गोपाल, कहे तो धरण इकोडी करो, कहे तले करी ऊपर धरो। कहे तो मोई गऊ द्यो जी आए, सब कोई देखे पति आए। नामा प्रणवै सेल मसेल, गऊ तुहाई बछरा मेल।
दूधे दोई जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे धरी। बादशाह महल मह जाए, औ कटकी कट लागी आए। काजी मुल्ला बिनती फरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए। ऐसे गुरु के प्यारे भगत जन झाटी परमेश्वर ने आके मरी हुई गऊ जिंदा कर दिते सी, अपने प्यारे भगत की सहायता ते रखिया कीते से। जदों जदों भी भगतां तो कोई औकड़ ते समा बनदा रहा और खालसा जी उदों ही परमेश्वर वाहिगुरु सो सरूप धार के उन्हां भगतां की सहायता ते रखिया हुंदे रहे। पर हरेक विच जरे जरे विच रब की जोत वेखनी है। भगत नामदेव वर्गे गुरु के प्यारे भगतां दे हिस्से विच आया है। सरकानेवाल विच भी रब की जोत वेखी। जदों मां ने सरकाना वढण वास्ते भेजिया, उसने गिट्टे नूं कहा सी ये मैं सर वढ़दा है, ते उपर तरेल पई हुई सी, तुपके डिगे, शायद ये रोंदे ने। अपने पैर ते दातरी मार के वेखदा है। जदों दर्द होया कहणगे नहीं सरकाना वढना। परमेश्वर आप नामदेव का स्वरूप बनाया, एक स्वरूप कारीगर का बनाया ते आके छपरी तैयार करके दिते। जदों शाम नूं घरे आए, एडी सुंदर छपरी, गवांढण भी दंग रह गई वेख के। क्या सी नामदेव इहो जी किसान मैनू भी बना के दे। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शवाई हो। तो पह दुगनी मजूरी दे हो, मुको बेटी देहो बताई हो। हरी बाई बेटी देन ना जाई, हजूर सब जाओ ना करे। दखण विच महाराष्ट्र उथे काम करने वाली बीबियां नूं बाईयां कहंदे ने, बाईयां। भगत जी उधर दे सन रहने वाले, महाराष्ट्र का जन्म सी, उथों की भाषा वरतते ने। री बाई बेटी, बेटी नाम कारीगर दा है। री बाई बेटी देन ना जाई, देख बेटी रहो समाई। हमारे बेटी प्राण आधारा, बेटी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान चवावे हो। लोग कुटुंब सब होते तोरे, तो आपन बेटी आवे हो। ऐसो बेटी भरन न साकों, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाई हो। बेटी के गुण सुनरी बाई, जल्द बांध थरू थाप्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंक भपीकन आप्यो हो। सो बेअंत ऐसे शब्द भगतां दे खालसा जी सर काने विच रब दी जोत नूं वेखना ते परमेश्वर ने आप आके सहायता करनी। जदों बादशाह ने घर ढा के ते कहा सी, तू मेरा की बिगाड़ सकदा है। छपरी ढा दी ते अपना महल बना लिया सी। क्या बादशाह मारकंडे की लंबी उम्र सब तो वध मनी हुई है, पर वह भी इन्ना मान हंकार नहीं सी करदा जिन्ना तू मान चुकी फिरदा। बादशाह 4 दिन की जिंदगी है, काहदा मान करदा है। आखिरी डंडे तो हाथ थिड़किया ते थले डिगा, मनकी टुट गई, मौत हो गई सी। आप जी ने विराग विच आके बचन कहे सी, गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंड पिछाए। मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तिरन धर्मूड बुलाए। हमरो करता राम सनेही, काहे रे नर गर्व करता हो। बिन सजाए झूठी ते, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। 12 योजन छत्र चलै था, देही गिरज ना खाए। सर्व सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहो पहो दर बांधे, हाथी खिन मह पही पर आई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए। ऐसे गुरु के प्यारे भक्त जन खालसा जी एक बार प्रसादा पका रहे सन, कुत्ता आया और मुंह च प्रसादे लै ते कुत्ता दौड़ गया। घ्यो का कुजा हाथ विच ले लिया, 4 को मगर कुत्ते दे भजे गए 4 को। अगे परमेश्वर भगवान प्रगट होए, सख्यात होके मिले, नामदेव सानू बड़ा दुखी तू कीता है। महाराज तगड़े करके कही जाने हो, दुखी मैं कीता कि तुसी कीता है। असी की किया नामदेव? महाराज मैं रोज ही पहलो प्रसादे पकाउंदा सां, फिर वो चोपड़दा सी, फिर तुहानू भोग लवाउंदा, तुहाडा बचिया होया सीर प्रसाद छकदा सां। अज महाराज चोपड़ तो बगैर रुखी प्रसादे लैके भज उठे, मैं चोपड़ के खावां ते मेरा भगवान रुखे ही खावे। आ फड़ो घ्यो दा कुजा, नाले आप चोपड़ के छको, नाले सीर प्रसाद मैनू भी बख्शो। कुत्तियां विच भी रब दी जोत खालसा जी, सब में जोत जोत है सोए। ऐसे गुरु के प्यारे भगत होए ने जिन्हां दी बाणी सतगुरु ने
सो अपनी बाणी के बराबर हजूर सच्चे पातशाह ने उन्होंने जियो आया कह के सत्कार एवें ही बख्शिया। आए सी चार ठग बनौटी काना पीलो चजो चैन। सो हजूर सच्चे पातशाह ने कहा सी अहंकार वाली बाणी नफरत वाली बाणी सानू नहीं प्रवान की हो सकते। सो ऐसे गुरु के प्यारे खालसा जी परमेश्वर नाल भिजे एकमिक होए हैं। हर वेले वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन है। तीर्थ यात्रा ते गए जदों द्वारकापुरी जिहड़ी है भगवान कृष्ण की वसाई हुई है। एक तो वह द्वारका जी हफ्ते के बाद ही रुड़ गई सी जदों कृष्ण जी का देहांत हो गया से। हुण जिहड़ी द्वारका वो दूसरी है। उत्थे यादां भगवान कृष्ण दी बणियां होईयां ने। रानी छोड़ मूर्ति भी बनी हुई है। सो उस समय खालसा जी जदों भगत जी उत्थे पहुंचे शरीर वडेरा होया ख्याल सी मन विच कपड़े धो के गुजारा करते सी लोगों के अपनी बरादरी का कर्म करिया करते। नाल लाडली घरवाली कपड़े धोंदे ने लिजा के पानी के किनारे दरिया ते कपड़े धो रहे ने। मन च विचार आई शरीर वडेरा हो गया द्वारकापुरी चौके कपड़े ले जाने भारे औखे हो गए। रब्बा जे किते परमेश्वर भगवान कृपा करे घोड़ी दे देवे ना नाले आप चढ़ जा करांगे नाल लाडली चढ़ जा करेगी नाले कपड़े बन बन के उपर रख लिया करांगे। परमेश्वर के मन च पीए भगत बंदगी करने वाला कितने लोगों ने पट्ठे लभदा फिरेगा दाना पाउंदा फिरेगा खरखरा करता फिरेगा होर नवा काम सहेड़ रहा है। यदि शंका ही मिटा देनी चाहिए है। कपड़े धो रहे नामदेव साहब है और थोड़ी जी दूरी ते खालसा जी एक पठान मुगल वो घोड़ी ते चढ़े आ रहा सी। घोड़ी सूई सो उन्हें विछेरा दिता ते वो आवाज मारी कपड़े धोण वाले आ विछेरा चौके द्वारकापुरी छड़ के आए। बड़ी उच्ची आवाज जो सुनी भयभीत हो गए। इत्थे तां मुगल जिहड़ा सी आ नहीं सी सकदा है। ये द्वारका नगरी तां भगवान कृष्ण की वसाई हुई है। इत्थे भला मुगल का की काम। पर जदों कहा मेरा विछेरा नगर विच छड़ के शहर विच है विछेरा सिर ते चुक लिया अगे अगे मुगल तुरिया जांदा घोड़ी दी लगाम फड़ी हुई मगर मगर भगत जी विछेरा सिर ते चुकिया सोचां च पए हुए ने। आ मेरे मालिक ने चंगा कीता है। मैं घोड़ी चढ़न वास्ते मंग रहा सा चुकन वास्ते मैनू दे दिती है। साई मेरे चंगी कीनी तले को मांगी ऊपर को दीने। आ मेरे साई ने चंगा कीता मैं तो घोड़ी चढ़न वास्ते मंगदा सा चुकन वास्ते दे दिते। मगर रह गए वो मुगल अगे तुर गया। पिछे जो भौंके वेख्या पिछा रह गया भगत है। आवाज मारी छेती आ हल के आ काली नाल चल। उसने कहा सी हे भगवान हे परमेश्वर शुक्र है मैं तुहाडा धन्नवाद करदा बलिहार जाना तुहाडे तो क्या मैं तेनों विगारी बनाया तू कहदा बलिहार जाना। कहते महाराज तुहाडी पाई हुई विगार भी बड़ी चंगी है। आप जी ने कई बार शब्द सुनिया होगा हल्ले यारा खुश खबरे बल बल जाओ हो बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाम। पुछया 10 नाम दे की है मेरा नाम नहीं जानदा। कहते महाराज चंगी तरह जानदा। सो की नाम है तेरा के मेरा। कहते महाराज आले तेरा नाम। आले नाम है संसार का ते संसार का मालिक तू है। हे परमेश्वर यही तेरा नाम है। पर मैनू कृपा करके दसो महाराज कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा में रवि द्वारका नगरी रास भगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मंगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना आसपात गाजपत नरह नरेंद्र नामे के स्वामी मीर मकांदा कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा में रवि। कुजा का अर्थ है किधर है किधरों महाराज आमद आना होया मैनू दसो कि आए किधरों हो। कुजा आमद कुजा रफ्ती ते किधर गए होए से। कुजा में रवि ते केड़े रस्ते ते किधर नूं में विच रवि रवाना होना रस्ते ते किधरों किधर गए सी किधरों आ रहे हो किधर नूं अगे जाना है। द्वारका नगरी रास भगोई है। द्वारका नगरी कृष्ण की वसाई होई भगवान की। इथे सच्चा सच्चा वचन भगोई कथन करना है। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। मैं तो अगे ही सोचता सा इन्नी मुगल की आवाज मिठी नहीं हो सकते। ये मुगल के भेस विच महाराज दर्शन देने वास्ते भगत नूं निहाल करने वास्ते आए हो।
खूब तेरी पगड़ी तुहाडी पग बड़ी सुंदर है, मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मंगोल है। मैं अगे समझदा सा द्वारका नगरी च काहे के मंगोल, मुगल दा भला की काम है। और नामदेव तू सानू किवें सियाणिया है। महाराज चंदी हजार आलम एक लखाना है, हम चिनी पातशाह सावले बरना है। चंदी हजार कितने हजार गऊआं दा वग चरदा होवे, जदों वच्छा छड्डोगे ना हजारां गऊआं दे वग विचों अपनी मां दे आसरां नूं जाके पवेगा। सो इस तरह जिवें वो वच्छा हजारां गऊआं दे वग विचों अपनी मां दे कोल पहुंच जांदा है। सो इसे तरह महाराज मैं तुहानू संसार दे अंदर अपने मालिक नूं सियाणना जानना कीता, होर किसे नूं नहीं। हम चिनी पातशाह सांवले बरना, आसपात गाजपत नरह नरेंद्र, नामे के स्वामी मीर मुकांद है। ऐसे गुरु के प्यारे भगत जन खालसा जी रास धारिए रास पा रहे सारे भगत जी उत्थे पहुंच गए। अद्धी रात नचदियां टपदियां रास धारियां नूं सो ते लग गई, प्यास लग गए। थोड़ी दूर तक खूह है, खूह के उपर एक बिरछ है बोड़ का, ओदियां दाड़ां थले खूह च लमकदियां होईयां ने ते उथे एक दिओ रहिंदा जिथे दिने भी नहीं सी कोई डरदा जांदा, रात नूं भला पानी कौन लैण जा सकदा है। सारियां नूं प्यास लगी, कहणगे प्यास लग गई है पर पानी खूह तो कौन लिया सकदा है इस वेले। सारे कहणगे नामदेव साहब नूं कहो ये लिआउणगे। भगत नामदेव जी कहणगे महाराजा डोल लै जाओ, पानी दा भर के लैके आओ खूह। तां कहणगे लियाओ भाई ये तो सेवा का मसला, लियाओ मैनूं फड़ाओ डोल है। लैके जदों खालसा जी उत्थे लज सी रस्सा पौड़ी दे नाल बद्धा होया ते जदों डोल बन के पानी च टुबकी जी लवाई ना ते उतों दिओ बिरछ तो उपरिया तो निआण संघी फड़ी, जदों गले तो संघी तो घुटण लगे कहणगे वाह जी वाह, तुसीं तां महाराज साडी सहायता करनी सी, तुसीं साडीआं रगां घुटण लग पए ते फिर पुकार दाद फरियाद फिर किहदे कोल करनी है। जिवें भाई गुरदास साहब जी दे बचन ने ना, जे मां ही पुੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ देण ते तुल जावे उस बच्चे की कौन सहायता करेगा। जे घर का पहरेदार ही जिंदरा भन लवे तो उस घर की रखवाली कौन करेगा। जे घर भन्ने पाहरू कौन रखण हारै, जे मां पुੱਤ है वेसदे तिस ते कौन प्यारा। ते महाराज तुहाडे कोल तां फरियाद करनी सी ते तुसीं साडीआं रगां घुटदे हो। छड़ दिता वो नामदेव मैनूं सियाण लिया, कहते हाँ महाराज पर ये डरावना ऐसा पेश क्यों बनाया होया है। उस वेले भी परमेश्वर नूं याद कीता ते खालसा जी इस बहाने नाल ही क्या सी शुक्र है महाराज दर्शन तां दे दिते ना, सो किरपा करो। एक बार मैं जदों आउंदे विच कैंसियां भी आ रहा सी, उस मंदिर विच आरती हो रही सी, मैं भी पहुंच गया। मैनूं जाति दा छूतर जान के धक्के मार के ब्राह्मणां ने मंदिर विचों बाहर कर दिता सी। भगती करदियां मेरे शैने खुहा दिते। अज महाराज अपने प्यारे भगत दियां रगां घुटदे हो, इउं ना करो। भैरव राग दा आखिरी शब्द है, पिछले दिनां च कथा आई होवेगी, तुसीं सुनी होवेगी भागां वाले गुरसिखां ने। आओ कलंदर केसवा कर अवदाली भेसवा, जिनी आकाश कुल है सिर कीनी कौंसै सप्त भयाला, चमर पोस का मंदिर तेरा एह बिद बने गोपाला, छप्पन कोट का पेहन तेरा सोल है सहस इजारा, भार 18 है मुदगर तेरा सहनक सब संसारा, देही महजिद मन मौलाना सहज निवाज गुजारै, बीवी कौला सौकायन तेरा निरंकार आकार है, भगत करत मेरे ताल शनाए के पै करो पुकारा, नामे का स्वामी अंतरजामी फिरे सगल बेदेसवा। आखिरी शब्द फरमा के निहाल किया भगत नामदेव साहब जी ने। ऐसे गुरु के प्यारे को बतंडावादी कोल आ गए, सो गायत्री मंत्र का गल कर लगे, उपदेश दिता, कह लगे जी असीं तां शिव जी दे भोलानाथ दे चेले उपासक हाँ। उन्हां बारे दसिया, कहंदे जी असीं राम जी दे उपासक हाँ। अखीर ते जाके फैसला किया, कह लगे पांडे तुमरी गैतरे लोधे का खेत खाती थे, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लौंगत लौंगत जाती थे, पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखा था, मोती के कारखाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी,
हिंदू वन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजै देहोरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जय देवरा नाम सीत है। ऐसे गुरु के प्यारे बेअंत शब्द ने समझ आज नहीं देना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर जिन्हां भगतां ने परमेश्वर नाल मिले होए एकमिक होए जिन्हां दा कोई फर्क ही नहीं गुरु के प्यारियां दा, उन्हां दी रचना तो निकले हुए वचन अमृतमयी धन गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब च अंकित कीते, कोई फर्क नहीं रहन दिता। अपने प्यारियां नूं भगतां नूं जीओ आया कह के सत्कार ते मान कृपा करके बख्शिया। मन बिरतियां नूं एकाग्रता सहित करदियां गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सारंग बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सारंग राग विच नामदेव साहब जी की बाणी हजूर कृपा करके फरमाउंदे हन। बीज मंत्र सतगुरु ने इत्थे कृपा करके अंकित किया है। 4 प्रकार का मंगल है। तुसी सारे विद्वान सियाणे पुरुष बैठे हो। गुरु की बाणी च 4 तरह का मंगलाचरण हजूर ने वरत्या ते कीता है। 524 बार ये मंत्र जिहड़ा आपां पढ़िया है सुनिया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद है। 524 बार गुरु ग्रंथ साहब च हजूर ने वर्णन किया होया है। एक मंत्र होर हजूर ने फरमाया होया है, वो केवल 2 वारी गुरु ग्रंथ साहब च हजूर ने मौज दे मालक सतगुरां ने वरत्या है। एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद है। ये 2 वारी हजूर ने, पहली बार पहला राग है सिरी राग है, 81 अंग दे उपर सिरी राग महला चौथा बन जा रहा है। जदों हजूर चौथे पातशाह ने अमृत भरे शब्द वरते, उस वेले ये मंत्र हजूर ने उथे कृपा करके फरमाया है। 5वें पातशाह ने बिहागड़े राग विच फिर यही मंत्र एक बार फरमाया है। सो घर दुख नींदड़िए पर सह संत पगा शब्द हजूर का आउंदा है, उथे यही मंत्र दूसरी बार वरत्या, तीसरी चौथी बार नहीं, 2 बार ये मंगल गुरबाणी विच हजूर ने कीता होया है। एक मंगलाचरण हजूर ने जिहड़ा खालसा जी 9 बार कीता गुरबाणी दे अंदर है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद है, ये 9 बारी कीता है। पहली बार हजूर ने माझ दी वार 137 अंग ते आरंभ हुंदी है, उस वेले हजूर ने मंगलाचरण करीब नवाज ने वरत्या है। 2 बार गौड़ी राग दे अंदर हजूर ने अष्टपदियां विच, 2 बार गौड़ी दे छंतां विच, 4 बार एक माझ दी वार 5, 3 बार गौड़ी दी भगत बाणी विच है, 8 हो गया। ते 9वीं बार हजूर ने जो भगत बाणी बिलावल दी रंभ कीती ना कबीर साहब जी ने, 800 ते शायद 55 अंग है। ऐसो इहो संसार पेखना रहन न को पई है रे, सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर कुतक्का दवाई है रे, बारे बूढ़े तरने पहिया सब हूं जमलै जई है रे, मानस बपरा मूसा की नो मीच बलैया खई है रे, धनवंता अरनिर तन मन्नई। ये खालसा जी उधर की बोली है, कांशीपुरी की भगत कबीर साहब जी उथे उधर रह, उथों की बोली मनई मनुख नूं कहा जाता है। धनवंता अरनिर तन मन्नई ताकि कछू ना कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बेडानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, आवह न जाहे न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया यह तजो जी जानी रे, कहत कबीर सुनहो रे संतो में रहे सारंग पानी रे। ये शब्द हजूर ने जो बिलावल राग की भगत बाणी का आरंभ किया, उस वेले भी ये मंत्र हजूर ने वरत्या 9वीं बार है। एक मंत्र है जिहड़ा हजूर ने महामंत्र जिन्होंने कहा जाता महामंत्र है, 32 बार हजूर ने गुरु की बाणी च वरत्या, 32 बार है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग प्रसाद, ये हजूर ने महामंत्र 32 बार 33 बार जी गिणीए तो जपजी साहब पाइए तो 33 बार बन जाता है। 32 बार हजूर ने मौज दे मालक सतगुरु ने फरमाया है। 1410 अंग ते जदों सवैयां की समाप्ति करके 12 वधीक की बाणी हजूर ने आरंभ की ना, ओ तंगी पै ओ हरी गहरी गंभीरी, ससुड़ सोईया के करी निवड़ न जाए थणी, गज जे लगा गिण बड़ी सखीए धौल हरी,
से भी टहिंदे डिठ मैं मुंत ना गल बथड़ी। उस वे हजूर ने यह महामंत्र आखिरी बार 32वीं बार उत्थे फरमाया है। ये जो सारंग राग आरंभ किया ना गरीब नवाज ने, उस वे भी वड्डा मंत्र हजूर ने महामंत्र फरमा के फिर अगे कृपा करके बाणी उचारी सी। एक बार ही लिखाया इस राग के अंदर है। बीज मंत्र हजूर ने कई बार ये शब्द वरते ने। सो भगत बाणी आरंभ करदे भी हजूर इत्थे भगतां दे शब्दां विच भी कृपा करके बीज मंत्र एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अद्वैत रूप वाहिगुरु परमेश्वर है। ओंकार उचारण मात्र जो रक्षा करन योग वाहिगुरु है। त्रई काल आबाद रूप है, जम्मण मन तो रहत जिहड़ा वाहिगुरु निरंकार सतगुर प्रसाद है। सतगुरां दी कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति हुंदी है। सतनाम सत दा है, गुर नाम चेतन दा है, प्रसाद नाम आनंद दा है। सत चेतन आनंद स्वरूप परिपूर्ण वाहिगुरु निरंकार परमेश्वर है। भगत नामदेव साहब जी बैठे हुए, उन्हां दा एक प्यार वाला मित्र सी जिहड़ा खालसा जी नूं सिੱਖਿਆ दे के भगत जी ने निहाल कीता ते ओ भाव भगती दा जीवन बसर कर रहा सी। पर उहदा पुत्र नौजवान होया ते बुरे कर्मां विच लग गया। उसने लिया के भगत जी नूं बेनती की, महाराज जिवें मैनूं सिੱਖਿਆ दे के निहाल कीता सी, आ मेरा नौजवान गभरू पुत्र ये गंदे विहारां विकारां दी उलझन विच फस के जीवन बर्बाद कर रहा है। कृपा करके इन्हूं भी अमृत रूप सिੱਖਿਆ दे के निहाल करो। उस वे भगत नामदेव साहब जी ने यह शब्द उस नौजवान नूं सिੱਖਿਆ देंदियां होइयां कृपा करके फरमाया है। काए रे मन बिखिया बन जाए। कहने लगे हे नौजवान, हे भाई, काए रे, काए किस वास्ते रे भाई, बिखिया बन जाए। ये विषय विकारां दा बन जंगल संसार है। बन नाम पानी दा हुंदा है, बन नाम जंगल दा हुंदा है। ये विषयां दे पदार्थां रूप पानी नाल भरिया होया संसार जंगल है, और ये विषय विकारां नाल भरिया होया है। हंस हेत लोभ को विचारे नदियां आगर, पर पर अग्न सागर दे लहरी पड़त जह मन मुखताई है। ये अवगुणा विकारां दे नाल भरिया होया संसार है। ते काए रे रे हे भाई, काए किस वास्ते अपने जीवन नूं इस विच ला के बर्बाद कर रहा है। अवगुणा विकारां च ला के क्यों अपने जीवन नूं बर्बाद करी जाना है। किस वास्ते जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जे जहरीला पानी पी लईए तां भी मौत है। जे बन दे जंगल दे फल जहरीले खाधे जाण, भगत जी कहणगे तां भी मौत है। इस करके क्यों ये बन जंगल संसार जिहड़ा है ये विषयां दा जंगल है। ये जिन्नियां वेलां दिसदियां ना सुंदर स्वरूप, फरीदा ए विस गंदना धरियां खंड लिवाड़, एक राहे दे रह गए एक राधी गए उजाड़। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ त्याग री सकिए, नाम महारस पीओ। नाम रस नूं पीना करे, विषय विकार भोगण दा जंगल संसार औगणा विकारां नाल भरिया होया है। क्यों अपना जीवन इहदे च ला के बर्बाद प्रेमियां करदा है। भुल्लो रे ठग मूरी खाए। क्यों भुला होया, कहणगे ये ऐसी ठग बूटी है। जंगल दे अंदर डाकू लोग हुंदे ने, डाकू। वो डाकू जिहड़े ने ਉਹ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਰੀ ਨਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਹਾ ਕੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਤਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਠੱਗ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ और माया दे छड्डे हुए ने। अगर को उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ ना ही बाप ना माओ। किसी का मां प्यो का, किसी भैन भरा का, किसी सज्जन दोस्त का कदे किसी का लिहाज ही नहीं करते। चौं वर्णा के बड़े बड़े बहादुर सूरमे इन्होंने औगण विकारां ने दरण मरण करके सिर दिते। कोई बच नहीं सके इन्होंने लोगों इन्होंने औगण विकारां तो गुरु की कृपा तो बगैर। भागां वाले गुरु के प्यारे बचे ने चौथे
पंजवें पातशाह दे आसा राग विच बचन ने। आसा महला पंजवा। चार वर्ण चौहां के मर्दन है, खड़ दर्शन कर तली रे, सुंदर सुगन स्वरूप सियाने, पंचों ही मोए शरीरे। जिन मिल मारे पंच सूरबीर, ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे। वड्डी कौम वस भागै नाही, हुक्म फौज हठली रे। कहो नानक तेरे जन ने दलिया, साध संगत कह झली रे। कोई बचिया जिहड़ा गुरु की साध संगत की झल विच आ गया ना, वो इन्हां ठग बूटी तो बच सकिया ना, ठगां तो नहीं तो कोई बच नहीं सकिया। सतगुरु कहते हैं जिन्ना मर्जी तीर्थ यात्रा च जिन्ने मर्जी साधन कर लवे, जे हिरदे चो औगण विकार मलिया मेट नहीं होए, तेरे कीते साधन भी सारे बेकार हैं। सतगुरु कहते जे काम दा फुरना तेथों दूर नहीं होया, क्रोध तो तेनू छुटकारा नहीं मिल सकिया, लोभ तो तू नहीं छुट सकिया, पराई चुगली निंदिया तो तू नहीं बाज आ सकिया। जिन्ने मर्जी भांडे मांजी जे तपड़े झाड़ी जोड़े झाड़ी जाए, सतगुरु कहते कहानी कौडी का लाभ नहीं होगा। ये गुरु का वचन। हजूर कहते काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निभल भई सब सेवा। सो खालसा जी के वड्डे भारी जिहड़े ठग ने, हजूर कहते ये नर क्यों ये ऐसी ठग मूरी क्यों खा रहा है, क्यों ना विषय विकारां विच लग के अपना जीवन बर्बाद करी जा रहे हैं। प्यारिया कुछ ख्याल करके वेख, इन्हां तो बच के रहना चाहिए है। भाई सत्ते बलवंडे ने आख्या सी गुरु रामदास तुसीं धन हो गरीब नवाज, तुहाडे विच तां औगण विकार नेड़े नेड़े की फड़कने सी, जिहड़े तुहाडे गुरसिख ने ना उन्हां विचों तुसीं हिरदियां चों मार कुट के कढ दित्ते औगण विकार है। वचन तुसीं कई बार पढ़िया होवेगा भाई सत्ते बलवंडे दी वार। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया, सिखी अतै संगति पार ब्रह्म करना सिकारिया। अटल अथाहो अतोल तू तेरे अंत ना पारा वारिया, जिनी तू सेविया भाव कर से तुद पारे उतारिया। लाभ लोभ काम क्रोध मोह, मार कटे तुर सब परवारिया। धन सो तेरा थान है सच तेरा पै सकारिया, नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया, मार कटे तुर सब परवारिया। सहत परिवार आसरी संपदा गुर सिखा दे हिरदे चो कद के नाश करके सिर दिते हैं। भाई सत्ते वाहिगुरु गुरु घर दे भट्ट उन्हां दी बाणी आपां सवैयां दी पढ़दे हैं। आख्या धन गुरु रामदास जेड़े काम दे फुरने सी ना, केसां तो पछाड़ के सिर दिता है। मोह जेड़ा ना बड़ा परबल है, पंजा वकारां चों मोह अगे आगू मन्निया होया है तां सारे बराबर ने, कोई घट नहीं किसी नालों, पर एक नूं नंबरदारी देनी पैंदी है तां काम चलदा है। जेड़ा मोह है ना, इनू नंबरदार बनाया होया है। पहलो मोह आवेगा फिर काम दा फुरना जागेगा, पहलो मोह पैदा होवेगा फिर क्रोध पैदा होवेगा। पहलो मोह जिहदे नाल मोह लाया ना, ओहदे फिर जोड़न वास्ते ओहदे खाण वास्ते फिर लोभी फिरदा होया फिरेगा। जिहदे नाल मोह है ना, ओहदे मगर इन्ने बंदे फिर अहंकारी हो जाएगा। लोग जिहड़ा नंबरदार मन्निया होया है। भट्टां ने सोइयां च कहा, हे गुरु रामदास मोह माला बेवस किया, काम गहे केस पिछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान से झाड़ियो। जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सो मन्ने, भवसागर बंधियो, सिख तारे सो प्रसन्ने। सिर आत पत सचो तख्त, जोग भोग संजुत बल। गुरु रामदास अटल राज भाग तो अटल राज अपहग दाड़े। हे गुरु रामदास तुसी ऐसे सतगुरु हो। सो हजूर सच्चे पातशाह भगत रसना द्वारा फरमाते ने, क्यों ये ठग बूटी माया के पदार्थां दे विषय विकार भोगण दी खा रहे हैं। ये जहरीले पदार्थ ने जिन्हां च ला के जीवन तू बर्बाद करी जा रहे हैं। ये गुरबाणी जिहड़ी है चौं जुगां का हुण नवेड़ा है। ये नहीं भी नामदेव साहब ने उन्होंने सिक्ख्या दी है, सानू कोई लोड़ नहीं। ये साडे जीवन विच भी है। गुरु के प्यारिया ख्याल करके वेख, 4 दिन की जिंदगी है ना, 4 दिन की जवानी तो भेट के नेड़े ते भी आ जाती है। तेनू जवानी आ गई तो की लोड़ आ गया। जो जीवन है कि किन्ना कोई 60 साल भोगदा है,
को मसा 70 साल भोगदा है, इदों वध के तो हुण कोई विरला विरला भोगदा है। बजुर्ग तो पहिलों हुंदे सी पिंडां विच 100 साल 90 साल के हत्थां 'च खुंडे फड़े हुंदे सी। हुण तुसीं पंजाब 'च जाने हो, किते खुंडा वेखिआ, किते 90-100 साल का बजुर्ग वेखिआ? 70 साल तो बाद 75 तो बाद कोई टपदा नहीं। आम औसत जिंदगी मनुख की 60 साल रह गई है, ते अद्धी जिंदगी सौ के लंघ जाती, 30 रह गई, ते कुछ बचपना लंघ गया, कुछ वडेपा लंघ जाएगा, ते जवानी विच किहड़ी रह गई जिहड़ा तू मान चुकी फिरदा है। जिवें बचन फरमाए सी ना, कहा नर गर्भ सतोरी बात, मन दा समाज टका 4 गांठी, एंडो टेढ़ो 4 4 पैसे कोल ने, कोई 4 मन दाने कोल ने, कमरे विच घर विच ऐ विंगी जी पग टेढ़ा होके चलदा, फूं फा मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। ये किन्ना चिर पदार्थ तेरे नाल निभ जाणगे ते नासवंत ने, झूठे ने। माई माया छाल तिरन की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हर का जाल है। इहो धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। ये तो आउण जाण वाले पदार्थ ने, काहदा मान चुकी फिरदा है। इस करके अपने जीवन नूं सवारन दा यतन कर। ये गुरबाणी सानू भी सिक्ख्या दिंदी है। भगत जी फरमाउंदे हन, रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, जैसे मीन पानी में रहै। भगत नामदेव जी दृष्टांत दे के होर सिक्ख्या देंदे नौजवान नूं, प्रमाण दे के दृष्टांत दे के गुरु की बाणी सानू भी सिक्ख्या दे रही है। जैसे मीन पानी में रहै, मीन मच्छी जिहड़ी है वो पानी विच रहिंदी है। जदों पानी विच मच्छी कलोला करदी है ना, टुबकियां लाउंदी है, मच्छी पानी च रहिंदी है। जदों काल जाल की सुध नहीं लहै, जेड़ी काल दी जाल फाही है ना, मच्छी नूं ओहदा चेता ही भुल्ला होया, कलोला करदी है। ये पता ही कोई नहीं भी एक दिन शिकारी दा जाल मैनू आके वलेट लैना है ते मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। कलोला करदी पानी विच मच्छी इस गल नूं भुल्ले भुल ही गई, चेता ही भुल गया भी जिहड़ी काल दी जाल है ना, काल दा जाल वो मैनू पै जाना है, जाल तान लेना, मैं पकड़ी जाना ते खीर मेरी मौत हो जानी। इस गल नूं मच्छी जानिया ही नहीं है। जिहबा स्वादी लीलत लोह, ते जुबान दे स्वाद करके ना लोहे दी पाई हुई कुंडी, झट उहनूं अगे आटा लाया होया, किसी ने गडोआ जा ला लिया, जानी कि मच्छियां दा मास जा के ला लेंदे ने, वो मच्छी दा पूंछ जा के लाया कुंडी दे, झट उहनूं झपट मारी मूंह च ले लिया, नाल ही तालू नूं ओ लग गई तिखी जिहड़ी सी खालसा जी, वो विचे डंगी गई। जुबान दे स्वाद ने कारण करके ना विचे ही टंग हो गई, ओहदे कुंडी दे विच ही ओ फस गई। ऐसी ओहदी हालत होई है। जीव प्रमाण देंदे ने भगत जी, ख्याल करके वेख है, जिवें मच्छी पानी च रहिंदी कलोला करदी, चेता भुलाया होया काल दा। इस दुनिया दे अंदर मच्छी की तरह संसार समुद्र च रहन वाले जीव, तू तेनू काल दा चेता ही भुला होया है, मौत कदे चेते ही नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा, जे साडे घर विच आउणा है ना, जे इस दर दे मार्ग दा पांधी बनना है, पहलों मौत याद करी। मौत है जिन्हों मौत याद, उन्हों परमात्मा याद है। मनुख नूं मौत भुली हुई है। खाण दा टाइम बनाया, मैं इन्ने बजे रोटी खा लेना जी, मैं इन्ने बजे ना पानी पीना है, इन्ने बजे मैं नाश्ता कर लेना है, इन्ने बजे मैं बच्चों नाल घड़ी बहना टीवी वेखना, इन्ने बजे मैं सौ जाना जी, मैं सारा इन्ने बजे मैं हसन खेडन दा मेरा टाइम है। सतगुरु कहते सारे टाइम टेबल ने बनाए हुए ने, पर जिहड़ा टाइम बनाउणा सी ना ओहदा नहीं चेता। हजूर कहते खाना पीना हसना सौना विसर गया है माना, खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। 100 वारी फिड़े मुंह पईए, एक लानत बनती है, 100 लानत पाइए तो एक त्रिग बन, एक खालसा जी त्रिग बनती है। सतगुरु कहते त्रिगा का लानत योग जिंदगी है। मौत भुली हुई, वाहिगुरु परमेश्वर का चेता ही भुला होया है। सो हजूर सच्चे पातशाह ने, गुरु नानक साहब ने सारा हुक्म किया थे, पहला मरण कबूल है, जीवन की साडे आस है, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास प्यारे। गुरु नानक का दर ऐसा है, इसे पहले मौत याद करके आई, मौत है। मरना प्रवान करनी जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। ये जीव रूपी मच्छी, पदार्थ रूपी पानी, संसार रूपी समुंदर है।
ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਲੋਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਨੱਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਜੰਜੀਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਓਨੀ ਫਾਈ ਤੇਰੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। हे ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਮੱਛੀ ਤੂੰ ਕਾ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ ਹੋ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨੇ ਜਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੋਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਨਕ ਕਾਮਣੀ ਬਾਧਿਓ ਮੋਹ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਕ ਕਾਮਣੀ ਬਾਂਧਿਓ ਮੋਹ। ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਲ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜਿਉ ਮਦ ਮਾਖੀ ਸੰਚੈ ਅਪਾਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਜੋ ਮਦ ਮਾਖੀ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਧੂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਉਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਤਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਰਛਾਂ ਨਾਲ, ਛਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਖ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਭਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਛੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਧ ਮਾਖੀ, ਜਿਉਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ। ਮਦ ਲੀਨੋ ਮੁਖ ਦੀਨੀ ਛਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਛੱਜਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਛੱਜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮਦ ਲੀਨੋ, ਉਹਨੇ ਮਧੂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁਖ ਦੀਨੋ ਛਾਰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਬਾਲਿਆ ਧੂਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਾਲਿਆ ਨਾ ਧੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਧੂਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਛਾਰ ਸੁਆਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮਿਲੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛਾਲ ਸੋਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਬਾਸ਼ਕੋ ਸੰਚੈ ਖੀਰ। ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛਾਲ ਸਵਾਈ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਖੀਰ ਸਵਾਈ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਲਾ ਬਾਂਧ ਗਊ ਬਾਸ਼ਕੋ ਸੰਚੈ ਖੀਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਊ ਦਾ ਵੱਛਾ, ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਚੋਗੇ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਲੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗਲਾ ਬਾਂਧ ਦੋਹੇ ਲੇ ਅਹੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹੀਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਾ ਬਾਂਧ, ਉਹ ਵੱਛੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੀਰ ਉਹ ਗਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਵੱਛੇ ਦਾ ਪਰੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪੀ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁੱਜਰ ਢੋ ਕੇ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਮਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕਰਸ਼ੀ ਸੁਆਉ ਨਾ ਸੰਭਲੈ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੈ,
ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਵਲੇ ਨਾ ਸਿਆਣੈ, ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਨੈ, ਗੁੱਜਰ ਕੋਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੈ, ਵੇ ਮੁਖ ਮੂਲੋ ਕੁੱਥਿਆ ਦੁਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ, ਗਲ ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਚੋਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਬਣਨਾ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਛਾ ਧੂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੋ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਅਤ ਕਰੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਅਤ ਕਰੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਹਾਰ ਹਮ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਡਿੱਗਦਾ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮ ਅਤ ਕਰੈ। ਸ਼ਰਮ ਥਕਾਵਟ, ਧੱਕਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਾਡੈ ਧਰੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਟੂ ਮਛਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਾਗਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੌੜੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਤ ਸੰਚੈ ਸਮਝੈ ਨਹੀਂ ਮੂੜ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਚੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਸਮਝੈ ਨਹੀਂ ਮੂੜ। ਐਸਾ ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਵੇ ਨਾ ਖਰਚੈ, ਅਕੇਲਾ ਖਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 40 ਗਜ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੰਚੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੱਜ ਨੌਟ ਕਰਕੇ ਸੰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੂੜ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹ ਧੂੜ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਧਰਤੀ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਨ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹ ਧੂੜ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਗਈ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਿੱਟੇ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ का ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤ ਜਰੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਦੇ ਕਰੇ ਫੁਰਨੇ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਲੈ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
हर कै नाम है। हरि दे नाम नाल तृष्णा होती है। सो काम क्रोध तृष्णा मह जलै। कदे काम दा फुरना अग तरह सड़दा रहिंदा, काम दा सताया होया, ते कदे क्रोधी होया होया क्रोध विच ही हर वेले सड़दा रहिंदा। क्रोध कहंदा यैर नालों भी विद्वानां ने समझिया भी ये माड़ा है। क्रोध जिहड़ा ना यैर नालों माड़ा है। यैर जिहड़ा ना किसी भांडे च पा के रख दिओ, 100 साल भावें रख छड्डो, कोई नुकसान नहीं होएगा। नुकसान उस दिन होना है जिदन किसी ने फक्का मार के खा लिया ना, उदन फेफड़े पटने ने। 100 साल भांडे च पिया यैर नहीं नुकसान करेगा। पर जिहड़ा ये क्रोध है ये एडा निकम्मा है, जेड़े पहले शरीर रूपी भांडे च पिया होवे ना, पहले तो वह बेड़ा गर्क करता है, साड़ता है। ते जिन्हों क्रोध भरी गल कहता ना फिर वह हिरदा भी साड़ देंदा है। सतगुरु ने सानू हुक्म किया कि फिक्का नांगा लाए सबना मैं सच्चा धनी, ये आओ ना कह ही ठाहे मानक सब अमोल वे। प्यारिया कदे किसी को माड़ा शब्द ना बोली, मंदा किसी ने आख झगड़ा पावना है। क्रोध कहता मैं एडा बली हाँ, जदों मैं आ जाना अखा वाले रन्ने कर देना, कन्ना वाले बोले कर देना। अंध करो दृगवंतन को सवरंतर को भद्रो कर डारो। तो तुसीं वेखिया कई बार दो बंदे लड़ते होण, भला मानस विच छडाउंदा भी छड्डो पर उन्होंने कदे परे हट जा, हुण मैनूं कोई अपना भरा नहीं दिसदा है। ते कई बार छडाउण वाले नूं विच घुट पै जांदी है, भला करन वाले दा भी नुकसान हो जांदा। बंदा तो बंदा अन्ना बोला हो जाता क्रोध वस हो करके। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते कदे किसी नूं माड़ा शब्द ना बोले। नंद लाल नूं संबोधन होए कलगीधर ने कहा सी, नंद लाल ये खलकत परजा जिहड़ी है ना, ये वाहिगुरू निरंकार दी है। जिहड़ा रब दी खलकत नूं दुखी करदा ना, कौड़े बचन बोलदा है, वो सुन के मालक जिहड़ा अंदर बैठा ना, मालक सारियां दे अंदर बैठा होया, वो मालक दी फिर करोपी हो जाती। करोपी ओदी खुशी नहीं कदे लई जा सकदे। खलक खालक की जान कर खलक सतावो ना है, खलक दुखे नंद लाल जी खालक को पेता है। इस करके गुरु के प्यारिया कदे किसी का बुरा ना चितविया कर, चुगली निंदिया ना करिया कर। वाहिगुरू परमेश्वर की याद विच जुड़। ये काम क्रोध आदि जिहड़े वड्डे भारी औगण ने और तृष्णा आदि दी ये जरीली अग है जिहदे नाल जलै सड़दा है। इस तो बचन का यत्न कर। साध संगत कबहू नहीं करे। सतगुरु कहते काम करो तृष्णा में जलै, साध संगत कबहू नहीं करे। सड़दा क्यों है? नहीं करे साध संगत करनी, कदे गुरसिखा नाल मेल नहीं करना, कदे गुरु प्यारियां कोल नहीं बहना, कदे वाहिगुरू परमेश्वर दा सिमरन नहीं करना, कदे नितनेम नहीं, कदे वाहिगुरू दी भाव भगती कदे याद विच नहीं जुड़ना। तां करके काम क्रोध मोह हंकार दे जलै तृष्णा की अग में सड़दा रहिंदा है, क्योंकि साध संगत कबहू नहीं करे। गुरु की साध संगत नहीं करता। जदों तक संगत नहीं ना कर लैंदा उदों तक भावना शरधा प्रेम ये पैदा नहीं हो सकता। ते जदों तक प्रेम शरधा भावना नहीं पैदा होई उदों तक भगत जी कहते तेरी मालक भगती भी नहीं हो सकती। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर स्यों पैज राखा हो राजा राम मेरे। शरधा भावना प्यार प्रवेश का भय ये गुरु के प्यारिया ने रखना है। ते गुरु की साध संगत हरेक ने करनी है। संगत को गुण बहुत अधिकाई पर सुआ घर के उधारे। गुरु की साध संगत करनी लाजमी है। और गरीब नवाज ने सामने बहुत बड़ी संगत की दात आप गरीब नवाज ने कृपा करके बख्शी है। सो ऐसी अमृत रूप सिक्ख्या भगत जी उस नौजवान को दृढ़ करवा रहे ने, सानू भी सिक्ख्या देंदे हन। कहत नामदेव ताची आन। भगत नामदेव जी कहते हे भाई सुनना कर, सानू तां असीं तां केवल वाहिगुरू दी आन शरण विच आए हां, होर किसी दी शरण नहीं। बुरी संगत के प्रभाव तो गुरु ने हाथ दे के रखे है, बचा लेना कीता है। तू भी बुरी संगत के प्रभाव तो बच के ताजी आन गुरु की साध संगत च आन आउणा कर। आन नाम कसम का भी हुंदा है, वायदा कर, ख्याल कर, गुरु की संगत विच आउणा कर, गुरु की शरण विच आ ते गुरु की शरण विच आके फिर बेनती करे। बेनती
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। सेवा कछू न जानो नीच मूर्खारे, मान करो तो दे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हमें अपराधी सद भूल तिल तो बख्शण हारे। संगत चाके अरदास करी, ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे। केते घनो असंख्य अवगुण मेरे, असंख्य अवगुण खते फेरे। नित प्रत सद भूलिए, मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी भूलिए। लूक करत विकार बिखरे प्रभ नेर हूते नेरिया। बिनवंत नानक दया धारा हो, काढ़ भगजन फेरिया। ये संगत करनी है ना, फिर गुरु रामदास नूं पुछ भी किवें करिए। बेनती है सच्चे पातशाह हे वाहिगुरु निरंकार गुरु रामदास वालों सानू बेनती करने की युगत समझाउंदे ने। हे मेरे पातशाह वाहिगुरु निरंकार मेरे ते किरपा करो। गुरसिखां दी गुरु के प्यारियां दी मैनू संगत बख्श दिओ जी। की करेगा संगत में जाके? ना आप बहना ना किसी ने बहन देना। और कूड़ी मार, किसी ने गोडा मार, इधर झाक उधर झाक, कौन आया कौन गया, ये ख्याल करेगा? जाके लड़ेगा लोग दूजा दूजिया नाल जाके लड़ाई पावेगा? नहीं नहीं, सच्चे पातशाह मैं इहो नहीं करांगा। की करेगा संगत में जाके गुरु के सिखा? सच्चे पातशाह मैं तेरी साध संगत दे दर दा कीड़ा बन के सेवा कमावांगा, कीड़ा बन के। पढ़ो बचन गुरु रामदास महाराज दे। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। मैं गुरु की साध संगत का सेवादार बन के छछा छोरे दास तो मारे, दास दासन के पानी हारे। मैं तेरे दासा का दास जिहड़े गा उन्हां दे दास ने ना, उन्हां दा पानी भरन वाला पनिहारिया बना लो सच्चे पातशाह। मैनू अपने गुरसिखां दी संगत किरपा करके बख्श दिओ। गुरु की साध संगत करनी एडी है। सो भगत नामदेव जी कहते असी तो भाईओ सो वाहिगुरु की शरण में आए हाँ, अपने आप को समर्पित किया होया वाहिगुरु दे उस परमेश्वर निरंकार की शरण में औगण विकारां की जिंदगी छड्ड के तू भी अपने जीवन को सवार ला। निरभय होए भजिए भगवान, ते भय तो रहत हो के निरभव हो करके भजिए भगवान है। खड़ पगा स्पन वाहिगुरु परमेश्वर निरंकार दा भजन करिए भजन है। जदों भजिए भगवान है, जदों भगवान दा भजन करेगा ना फिर निरभव, फिर भय तो मुक्त हो जाएगा। भय च सब आकार है। निरभव हर जीव सोए। सारी दुनिया भय विच है। किसी नूं किसी दा भय है, किसी नूं किसी दा 7 प्रकार दा भय मनिया होया है। यह भय भय पर लोग भय जन्म वेदना जात अंध रखे यार गुप्त भय समात्र भय सात। ये 7 प्रकार का तेरा डर जदों जपेगा ना वाहिगुरु नूं, ये 7 प्रकार का डर भय तेरा दूर हो जाएगा। भय तो मुक्त हो जाएगा। निरभव जपै सगल भव मिटै। सारे डर दुक्कड़ तेरे दूर हो जाएंगे। इस करके वाहिगुरु परमेश्वर का भजन वाहिगुरु की याद में जुड़ के गुरु के प्यारिया करिया कर। ये नौजवान नूं सिक्ख्या देंदियां होइयां भगत जी ने ये अमृत भरे बचन किरपा करके फरमाए ने। गुरु किरपा करे चढ़दी कला दा जीवन, गुरु का शब्द सिद्धांत साडे हिरदे च वस जावे, जिस करके जीवन सफल हो जावे। 14 तरीक तो लैके 20 तरीक तक सवेर दा एतवार दा दीवान, 20 तरीक दा उदों तक तुहाडी सेवा च हाजरी है। मैं दोपहर के दीवान तो बाद फिर चले जाना है। ऐतकी इन्ना समा बनिया तुहाडे दर्शन दीदारे करन दा। गुरु किरपा करे चढ़दी कला दा जीवन और इसे तरह प्यार तुहाडे गुरसिखां नाल सारिआं नाल बनिया रहे। भुल्लां चुक्कां नूं कदे ना चितारना। दिल की गहराई विच शुभासी बख्शणी। सतगुरु रहमत बख्शिश करे। भुल चुक दी खिमा बख्शणी जी। काम क्रोध तृष्णा अत जरै, साध संगत कबहू नहीं करे। कहत नाम देव ताची आन, निरभय होए भजिए भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।